कैथल के दी आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी का उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक चेतना एवं तर्क शक्ति का विकास करना था। प्रदर्शनी में इसी वर्ष चंद्रयान 3 एवं सूर्ययान आदित्य L1 आकर्षण का केंद्र रहे। इसके अलावा छात्रों ने जैविक खेती एवं इसके लाभ, सोलर कुकर, स्मार्ट सिटी, सुचारू यातायात संचालन, सिग्नल, LPG के रिसाव की सूचना देने वाला यंत्र, स्वचालित कूड़ा संग्रह करता स्मार्ट डस्टबिन, परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं जैविक इत्र निर्माण प्रक्रिया को भी दर्शाया। प्रद्युमन सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्रों में वैज्ञानिक चेतना का विकास होता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व उप कुलपति महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल एवं चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार डॉक्टर समर सिंह उपस्थित रहे तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार भाग सिंह आर्य ने शिरकत की। विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिमन्यु चौहान, चेयरमैन एडवोकेट प्रद्युमन सिंह सहित समस्त प्रबंधक समिति के सदस्यों एवं प्रधानाचार्य सपना सिंह ने अभिभावकों व अतिथियों का स्वागत किया। इसके अलावा नर्सरी से लेकर दूसरी तक के बच्चों ने फैंसी ड्रेस में हिस्सा लिया। आइए सुनाते हैं मॉडल को लेकर बच्चों ने क्या कहा और अभिभावक क्या बोले। Good morning everyone. My name is Amrita Singh and I'm a student of 10th class. My name is Saksam. I read in 8th class. My name is Yash. I read in 8th class. Today we have demonstrated the Jallianwala Bagh massacre here. This is the expectation what the people thought of celebrating it as the Baisakhi. But what actually happened, you can see it here. What actually happened is that when the people of India gathered to celebrate Baisakhi, General Dyer, who got to know about the event, asked for the firing by the Britishers. They blocked the only exit from the garden and started firing, which caused a massive death of people. Around 400 people died and nearly 100 people were injured. And through the Indian reports, it was said that almost 100 people were dead. And basically, this is one of the greatest event which occurred in our independence struggle. So we have thought of demonstrating it. Today we are representing integrated farming system. In this system, interrelated farming activities are used. Here, the waste of one component is used as an input into the another component. In fish farming, fishes are ammoniotelic, that is why they will secrete ammonia. Ammonia is a biofertilizer, which is NH3. It will increase the fertility of our soil, that is why it will increase the quality of our crop, and we will not use any kind of pesticide, that is why it is environmental friendly as well. Here we are using the cow dung as an input in our biogas plant. The methanobacteria present will convert the organic matter into methane. The methane or the biogas can be used as a fuel in our houses, and the leftover manure can be used in our field, and hence we will remove the requirement of inorganic fertilizers. So here all the components are interlinked with each other. Even it combines the livestock with crop activities, which will need a huge number of labor. That is why it also reduces the vicissitudes of our underemployment in India. Morning, sir. I am Manit. I am Krishan. I am Rajit. We are the students of grade 6 Lotus. Today we are going to tell you some major cause, effects and ways to reduce pollution. So let us start. Pollution is the result of harmful components or elements interacting with the pollutants of natural environment. There are many types of pollution: soil, air, water and land pollution. Whatever type of pollution it is, it has negative impact on our environment, human beings, animal and ecosystem as a whole. Now, Rachit will tell you some major causes of pollution. Our reckless actions have resulted in pollution of many types. We directly dump waste into water bodies, which causes water pollution. We cause industrial waste, burning of fossil fuels, which emit smoke into air, generate air pollution, which make it difficult for all living things to breathe. Now, Yusuf will tell some harmful effects of pollution. Good morning to everyone. This is Ajay Jangra from 11th Science of Aryan International School. We are presenting you the model of Chandrayaan 3. This is the third attempt of the ISRO to achieve the moon surface. First two times we were unable cause of some fault. First in Chandrayaan 1, the main sensor of the Chandrayaan 1 was faulty and we were unable to connect with it. And next time in Chandrayaan 2, the lander speed was too high and it crashed on the moon surface. Hi, I am Dr. Neelam Sharma.
एंड बच्चों का जो मॉडल है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी लेबर कर रखा है और 1 बाय 1 बच्चे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड मतलब बच्चों ने इतने डीपली इसको एक्सप्लेन किया है कि काफ़ी अच्छी तरह से इनको नॉलेज है ओजोन लेयर और क्या मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ओजोन लेयर डिफ्लेट होती जा रही है उसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया बच्चों ने। एंड काफ़ी यहाँ पे जितने सारे मॉडल्स हैं बच्चों की काफ़ी मतलब लेबर लगी हुई है इनके ऊपर और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। सर ओवरऑल स्कूल का फीडबैक तो काफ़ी अच्छा है बिकॉज यहाँ मैंने ड्राफ्टिक चेंज अपने ही बच्चों में देखा है एंड स्किल्स पे काफ़ी फोकस किया जाता है, जैसे स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग एंड रीडिंग बहुत अच्छी है, बच्चों की स्किल्स काफ़ी अच्छी है एंड मतलब ओवरऑल बच्चे के ऊपर फोकस किया जाता है, चाहे वो एक्टिविटी हो या फिर स्टडी एग्ज़ाम्स हैं, बहुत अच्छे से बच्चों के ऊपर फोकस किया जाता है सारी स्किल्स के ऊपर। हाँ जी मैम, आपका नाम? एडवोकेट सुमन बिश्नोई जी, क्या कहोगे आर्यन स्कूल में आप पहुँचे हो साइंस एग्जीबिशन में, तो किस तरह के मॉडल्स आप जैसे आपने देखे? सर मैं अभी वैसे पहुंची हूँ तो मैंने फर्स्ट देखा है, काफ़ी अच्छा लगा, बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है तो काफ़ी अच्छा है। तो मॉडल्स के बारे में बच्चों की जो प्रेजेंटेशन है हाँ वो जी, कैसी बहुत लगी अच्छी आपको? प्रेजेंटेशन है। अच्छी लगी? हाँ जी। तो फीडबैक की बात करें, किस तरह का फीडबैक आप दोगे? सर बहुत बढ़िया है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा और काफ़ी मतलब बहुत बढ़िया है। आप सेटिस्फाई हो? हाँ जी बिल्कुल। जी सर, दी आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट आप पहुँचे हो, तो किस तरह का फंक्शन था और जैसे आपने प्रोग्राम देखा तो इसके बारे में क्या कुछ कहोगे? आज आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में साइंस में जो फंक्शन था, साइंस एग्जीबिशन और फैंसी ड्रेस का, तो वो एक अलग ही तरह का फंक्शन था क्योंकि बच्चों में जो प्रतिभा होती है और वो यहाँ पर दिखाई गई बच्चों ने साइंस के प्रति। अलग अलग मॉडल थे और वो मॉडल बच्चों में अगर जिज्ञासा होगी तो बड़े होकर वो उन मॉडलों का करियन पूरा रूप देंगे। तो इसलिए कोई एक तरह के मॉडल नहीं थे, जो अपनी सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट करते हैं वो भी थे, साइंस के जो मॉडल थे वो भी थे, और जैसे कि हाई मतलब टेक के जो हम कहते हैं टेक्नोलॉजी, वो भी मॉडल इसमें दर्शाए गए, छोटे बच्चों द्वारा भी और बड़े बच्चों द्वारा भी। तो इनका मतलब केवल यही था कि बच्चों में एक साइंस के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना जी। और अगर स्कूल ये काम करता है तो नो डाउट उनके बच्चे बड़े होकर बड़े बड़े साइंसदान बनेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो बनेंगे, तो उनका सीधा सा मतलब यही होगा कि देश का जो अपना राष्ट्र है उसको एक अच्छा राष्ट्र कैसे बनाए। तो वो प्रतिभा बच्चों में अगर होगी तो तभी बना पाएंगे। और ये आर्यन इंटरनेशनल स्कूल इस तरह की तकरीबन एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो करता रहता है और इससे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है। साथ में जो पेरेंट्स भी यहाँ पर आए तो उन्होंने भी अपने बच्चों का टैलेंट देखा, का सब के तकरीबन आए हुए थे, और ताकि वो भी बच्चे का टैलेंट देके उसमें वो भी योगदान कर सकते हैं ताकि उसी दिशा में बच्चा आगे काम करे। जी सर, आज जो साइंस एग्जीबिशन लगाई है इसका क्या कुछ उद्देश्य है और किस तरह का फीडबैक पेरेंट्स का आया है? जो भी एक्टिविटी बच्चों को करवाई जाती है वो बच्चों को एक एक्सपोजर देना, उनको अपनी बात रखने की कला, मौका, ये सारी उनको मिलेंगे। हमारे इलाके के बच्चे बहुत शर्मालू और साधारण घरों से बच्चे हैं, तो उनको यदि अपनी बात कहने का मौका मिलता है और साइंस के टच में आकर के उनको साइंस से संबंधित प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है तो उनके दिलों में एक नई जिज्ञासा और एक इमेजिनेशन बनता है ताकि आने वाले टाइम में वो जाकर के नई नई चीज़ें सोच सकें और तैयार कर सकें। जी मैम, आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में आज किस तरह का प्रोग्राम था? सर आज स्कूल का 4th एग्जीबिशन है, हमारे यहाँ पे 4th एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुआ है जो कि ग्रेड 3rd से 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज है। इसमें हमारे साइंस मॉडल्स हैं बहुत सारे, जैसे इसरो का पूरा एक बेस हमने कंप्लीट तैयार किया है, ऑटोमेटिक डोर सेंसर्स तैयार किए हैं, ब्लाइंड स्टिक प्रिपेयर किया है, बहुत सारे AI बेस्ड एंड रोबोटिक्स मॉडल्स बच्चों ने तैयार किए हैं, ऑटोमेटिक कैमरा बेस्ड स्वीपिंग मशीन भी बच्चों ने प्रिपेयर की है। उसी तरह से बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी बच्चों ने डिज़ाइन किए हैं, बैंक का पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन किया है, SST के सोशल साइंस के काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। यहाँ पे बच्चों का फुल पार्टिसिपेशन है फ्रॉम क्लास 3rd टू क्लास 12।
और जूनियर बच्चों के लिए हमने एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है ताकि उन बच्चों को भी एक मोटिवेशन मिल सके। सो दिस इज़ बेसिकली वी कैन से 100+ मॉडल्स आर देयर, जहाँ पे बच्चे अपना अपना व्यू अपने अपने मॉडल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। साइंस का ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट होगा जो बच्चों ने प्रेजेंट नहीं किया है। बच्चे काफ़ी दिन से प्रिपेयर कर रहे हैं, पिछले 15 दिन से इस इवेंट की तैयारी चल रही है। पेरेंट्स आ रहे हैं, अपना अपना फीडबैक दे रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं और हमें बहुत प्यार मिला पेरेंट्स का कि वो लोग यहाँ आए और विज़िट कर रहे हैं, अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं।